Hello students, how are you? In our previous class we completed our topic, that is muscular tissues, and in which we discussed that there are three type of muscular tissues which are called skeletal, second is smooth, and third one was cardiac or hard tissues. Okay, now in today's class let's discuss about the fourth and the last topic of chapter, the fourth animal tissue, and also the last topic of our chapter, that is nerve tissue, nervous tissue, or nervous tissue of animals, or simply we can say that nerves, neurons. Okay, if we consider, or we can also name this nervous system, nervous system of animals. Our nervous system, firstly question that comes in our mind, that is what is the nervous system. Nervous system means the control and coordination of our body by the electric means. So it includes brain, second is spinal cord, brain, spinal cord, and third, if we consider this part, then nerves. These three combine and make our nervous system. ये तीनों कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं? अपना नर्वस सिस्टम. ओके, सो दैट इज आवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो सारा का सारा कौन करता है? दैट इज नर्वस सिस्टम. कौन करता है? नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को हैंड मूव करना है, तो इसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कहाँ है? ब्रेन. या कोई नेल मेरे हाथ की पिन, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे हाथ के टच हुआ, हाथ के टच होती हाथ जो है वो एक साथ हटता है. ओके, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. जिसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड. दैट इज बैकबोन के अंदर से एक न्यूरॉन्स का एक पूरा एक डेंस नेटवर्क या रॉड लाइक स्ट्रक्चर पास आउट होती है, जिसको अपन बोलते हैं दैट इज स्पाइनल कोड. ओके, सो ब्रेन, स्पाइनल कोड और न्यूरॉन्स, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? नर्वस सिस्टम. जो कि हमारी बॉडी का क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जो हमारे विल के अकॉर्डिंग जो वर्कआउट होते हैं वो सारा यही कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं. अगर अपन बात करें नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम बना हुआ किसका है, देन इट इज मेड अप बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, called nerve cells, and these are also called neurons. नर्व सेल्स ये स्पेशल सेल्स जिनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, उसका बना हुआ होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, these are structural and functional unit. These are structural and functional unit of nervous system. And that question generally ask, what is the structural and functional unit of nervous system? Then the answer is nerve cells, or we can say that neurons. nerve cells या neurons जो हैं वो इसका स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट इसकी मानी गई है. Got it? Understand? If we consider the neuron, the structure about the neuron, then we can say that, in simple word we can say that nervous tissues is made up by neuron. Okay, neuron, it basically divided into two parts. न्यूरॉन जो है बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी. फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी. इट इज आल्सो कॉल्ड सोमा एंड इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोन.
सेल बॉडी, सोमा या साइटोन इसके वर्ड नेम दिए जाते हैं, जनरली अपन सेल बॉडी वर्ड काम में लेते हैं. द सेकेंड पार्ट इज nerve processes. Nerve processes. And nerve processes, there are two type of nerve, there are two nerve processes. One is called dendrons and second is dendron and axon. Okay, so basically if we consider the parts, then if we do not divide the neuron into that way, then we can say that neuron has three parts: cell body, dendrons and axon. Okay, clear? So we can say that a nerve cell or neuron has three parts. First is cell body, second is dendron and third is cell body, third is axon. This is the diagram of a typical neuron. ये एक typical neuron का diagram बनाया अपन ने. This irregular structure is called cell body. ये जो irregular structure है इसको क्या बोला जाता है? That is called cell body. Got it? Which consists cytoplasm, जिसमें क्या पाया जाता है? एक तो साइटोप्लाज्म एंड दैट इज न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म और उसके अलावा क्या मिलता है? दैट इज न्यूक्लियस. ओके, अदर देन इट देयर आर सम स्पेशल पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन नर्व सेल्स. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड Nissl particles. Nissls particle. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नर्व सेल. ये नर्व सेल की आइडेंटिफिकेशन है. ये पार्टिकल्स और कहीं नहीं मिलते, मतलब और किसी भी एनिमल सेल्स में ये पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते. गॉट इट? तो इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जितने भी मोस्ट ऑफ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक द गोल्जी apparatus, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज सेंट्रोसोम. जो सेंट्रियोल्स हैं वो इसमें नहीं होती. गॉट इट? ओके, नाउ दैट इज इस सेल बॉडी से टू टाइप के न्यूरॉन्स यहां पर इमर्ज्ड आउट होते हैं. एक तो स्मॉल एंड ब्रांच्ड, एक तो क्या है? स्मॉल एंड ब्रांच, जिनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स, और एक लंबा थ्रेड अनब्रांच्ड जिसको बोला जाता है एक्सॉन. सो दीज आर dendron. If we consider the singular term, then dendron, and if we consider the plural, then that is dendrite. So I am using plural here, that is dendrite. Okay, so first is dendrites. Okay, these are dendrites. This long thread that is called axon. इस long thread को क्या बोलते हैं अपन? That is called axon. Got it? Understand? Clear? The short branches, short and branch that are dendron, and long unbranched that is called axon. Axon has a layer, may be and may not be. It depends on the type of axon. This is called myelin sheath. This is called myelin sheath, and this is also called medullary sheath. Myelin or medullary sheath. Okay, that present. The ending of the axons have knob-like structures. जो एक्सॉन के एंडिंग जो है उसमें नोब यानी कि बटन जैसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड synaptic knob, but that's not in our syllabus. So that the branch that divides, these are called, यही अपने नाम है जो अपन उसकी बात कर लेते हैं, that is called nerve endings. इन्हें क्या बोलते हैं अपन? nerve endings. ये
ये नोब्स जो है वो कहलाती है सिनेप्टिक नोब्स, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। गॉट इट? मैनी न्यूरॉन्स, अब अगर अपन बात करें तो दैट इज द टाइपिकल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। And this is very very important question generally asked in our exam, that make the diagram of neuron. So that diagram you have to draw. Okay, now consider a topic that is many neurons. ये तो एक सिंगल न्यूरॉन की अपन ने बात की है। मैनी न्यूरॉन्स कंबाइंड, न्यूरॉन्स जो है वो कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर बनाती है नर्व फाइबर्स। क्या बनाती हैं? दे कंबाइन टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक ए नर्व। क्या बनाती हैं? एक नर्व बनाती हैं, और नर्व जो है उनके जुड़ने से नर्व फाइबर्स यानी कि नर्व टिश्यूज का फॉर्मेशन यहां पर होता है। व्हाट इट? द सिग्नल्स। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें इंफॉर्मेशन कैसे पास आउट होती है। जो कोई भी अपन यहाँ पर सिग्नल, जो भी इंपल्स, अब देखो यहाँ पर 2 टर्म्स आएंगे, तो पहले उन टर्म्स की अपन बात कर लेते हैं। एक तो है स्टिमुली और एक वर्ड आएगा इम्पल्स। स्टिमुली एंड सेकेंड इज इम्पल्स। ओके, एक एग्जांपल से इस चीज को समझना। एक शार्प ऑब्जेक्ट मेरे टच हुआ, रिजल्ट मेरा हैंड मूव किया। उसके एब्सेंस में क्या मूव किया? नो। तो वो जो शार्प ऑब्जेक्ट है वो कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली, जिसके कारण से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट, जो एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंज हुआ है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जब एक्शन होता है, क्या होता है? एक्शन। गॉट इट? तो वो जो एक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। क्या बोला जाता है उनको? स्टिमुली। ओके, तो जब हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुली रिसीव होती है, स्टिमुलस जब हमें मिलता है, तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उसका डेंड्राइट वाला पोर्शन उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। दीज इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो DCA, यानी कि डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन। DCA पाथ को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करते हुए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचती है। वेयर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, जहां पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होती है, एंड मेक ए डिसीजन, और फाइनली एक डिसीजन बनता है कि फॉर एग्जांपल जैसे टच हुआ तो जो चुभने का जो सेंस है वो ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने डिसीजन लिया है, सॉरी स्पाइनल कोड तक पहुंचा, चुभने का स्पाइनल कोड तक जाएगा, स्पाइनल कोड डिसीजन लेता है कि जो हैंड है उसको मूव करना है, तो हैंड जो मूव किया, अब डिसीजन यहाँ पे लिया गया है, इंफॉर्मेशन यहाँ तक वापस आती है। गॉट इट? तो फिर हम उसका हैंड जो है वो अपन मूव करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल की, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इम्पल्स। क्या बोलते हैं अपन? इम्पल्स। गॉट इट? तो सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द सिग्नल्स दैट पासेस थ्रू द न्यूरॉन, वो सिग्नल्स जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू पास होते हैं, क्या होते हैं? न्यूरॉन्स के थ्रू पासेस होते हैं, दैट आर कॉल्ड इम्पल्स। उन्हें क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोलते हैं। गॉट इट? नर्व टिश्यूज और न्यूरॉन्स, these are highly specialized for stimulate and transmit the signals in our body। जो नर्वस सिस्टम है ये हाईली स्पेशलाइज्ड है इंफॉर्मेशन का जो स्टिमुलेट होने के लिए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और फिर उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए, दैट इज हाईली स्पेशलाइज्ड। गॉट इट? और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशंस को रैपिडली ये ट्रांसमिट करता है, एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स विथ हाई स्पीड। नॉर्मली स्पीड, अगर इसकी स्पीड की अपन बात करें तो इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग की जो स्पीड है दैट इज 80 to 120 मीटर पर सेकेंड, जो एक बहुत हाई स्पीड अपन कंसिडर करते हैं। गॉट इट? नाउ जो नर्वस सिस्टम है
nervous system, it combine with the muscles and make neuromuscular system. जो नर्वस सिस्टम जो है वो मसल्स के साथ मिलकर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डेवलप करता है, जहां पर दोनों जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं. दैट कॉम्बिनेशन इज द बेसिक और फंडामेंटल. दिस इज द बेसिक और फंडामेंटल इन मोस्ट ऑफ एनिमल. जितने भी एनिमल्स उनमें फंडामेंटल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. और हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, हमारी बॉडी में जो रैपिड जो मूवमेंट्स होते हैं स्टिमुली के अगेंस्ट, किसी भी एनवायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दैट सिस्टम. ओके, क्लियर. तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो ये हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कि इंफॉर्मेशंस को रैपिडली ट्रैवल करता है, डिसीजन मेकिंग करता है. ओके, सो दैट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज nervous system. Now let me discuss some of the question answers of that, so you can do these. The first question is define the term tissue. I think you can do it. It is also in notes and we discussed in previous class. How many type of element together make up the xylem tissue? Name them. Xylem tissue जो है उसको बनाने में कितने जो elements हैं, कितने एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उनके नेम लिखने हैं. तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन. जाइलम इज मेड अप बाय द 4 टिश्यूज, 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स: जाइलम, वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ओके. थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर जो सिंपल टिश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से कैसे डिफर हैं? सिंपल सी टर्म है. सिंपल टिश्यूज जो हैं they are made up by only one type of cells, while the complex tissues, these are made up by more than one type of cells. I think you can do it. Fourth, differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of the cell wall. Cell wall की basis पर parenchyma, collenchyma और sclerenchyma को differentiate कीजिए. तो parenchyma में बहुत thin cell wall होती है. collenchyma, it has थिक सेल वॉल एट द कॉर्नर्स. जो कोलेनकाइमा है उसमें कॉर्नर्स पर थिक सेल वॉल होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ पैक्टीन, while in the sclerenchyma the cell wall is thick enough and lignified. lignin का डिपोजिशन उस पर होता है. Got it? तो थिक सेल वॉल किसकी? sclerenchyma की. कॉर्नर्स पे थिक कोलेनकाइमा एंड थिन दैट इज पैरेन्काइमा. फोर्थ, what is the function of the stomata? Stomata के क्या functions है? So we already discussed in the previous classes that exchange of gases and the transportation and transmission of water, transpiration, the loss of water in the gaseous form, that are the functions of stomata. Sixth, diagrammatically show the difference between the 3 type of muscles fiber. muscles, तीनों जो muscles fibers उनके diagram draw करनी है. Seventh, what is the specific function of cardiac muscles? cardiac muscles का क्या specific functions हैं? तो you know that name से ही पता है, cardiac यानी कि heart. तो इनका क्या function है? heart के अंदर जो contraction and relaxation चलते हैं blood की, you know, आपने heart का pumping का diagram वीडियो आपने देखा होगा. तो heart जो है contraction और relaxation जो करता है that is due to cardiac muscles. 8, differentiated between stated, unstated and cardiac muscles on the basis of their structure, site, location in the body. We make that, अपन ने उसका जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पूरा डिटेल्ड में अपन ने डिस्क्रिप्शन जो मतलब जो पूरा डिफरेंशिएशन है वो अपन ने स्टडी किया था. अगर आपने मिस कर दिया है तो प्रीवियस क्लास का वीडियो आप देख लेना. 9th, draw a level diagram of neuron, that is. 10th, name the following टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ. कौन सा होता है? कौन सा? अब आपको इसको नोट्स में आपको फाइंड आउट करना है. टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स इन ह्यूमंस. मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करने वाला. टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट. टिश्यू दैट स्टोर द फैट इन आवर बॉडी. कनेक्टिव टिश्यू विथ ए फ्लड मैट्रिक्स. फ्लड मैट्रिक्स किसमें है? केवल एक ही कनेक्टिव टिश्यू है. बी से स्टार्ट है, स्पेलिंग याद कर लेना. टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन. 11th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग.
जो टाइपिंग टिश्यूज अपने को फाइंड आउट करने, स्किन, स्किन में कौन सा है स्टेटेड, ओ सॉरी आंसर नहीं बताना है बिकॉज दैट्स योर वर्क टू फाइंड आउट द आंसर्स इन कॉपी इन द नोट्स। सेकंड, बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क वगैरह कुछ नाम लिया था अपन ने, देख लेना। बोन्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स एंड द वेस्कुलर बंडल्स। तो इनमें टिश्यूज कौन से वो अपने को बताने। 12th क्वेश्चन है, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट। ये पैरेन्काइमा में अपन लिखा भी था, पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो दैट इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। 13th, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द प्लांट। प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल है। प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन करने का वर्कआउट करती है, गैसेस का एक्सचेंज कंट्रोल करती है, मटेरियल्स का एक्सचेंज कंट्रोल करती है, प्लांट को एक शेप देके रखती है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे वर्क करती है, तो दैट इज इन नोट्स के अंदर काफी अच्छी तरह से बनाया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। और 15th क्वेश्चन जो है, फ्लो चार्ट, ये अपन ने बनाया था बिल्कुल स्टार्ट में, प्लांट के टिश्यूज क्या हैं। ओके, क्लियर। So that are the question answers that you have to do in your copy. Okay. Now, after that, I am starting our 7th lesson, that is diversity in living organisms. So let us start it. One minute for cleaning of the blackboard. Now, our lesson number 7. Lesson 7, that is diversity in living organisms. Okay, diversity in living organisms, particularly बोले तो that is term is biodiversity. The term means that is biodiversity. What do you mean by biodiversity? सबसे पहले तो अपन इसी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब यहां पर किससे, बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायो it is standing for the living forms, or we can say that living organisms. बायो का यहां पर स्टैंड किसके लिए कर रहा है, लिविंग फॉर्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड डाइवर्सिटी दैट मीन्स डिफर या डिफरेंट। ओके, तो अगर अपन वर्ड मीनिंग पे चलें तो बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स, अगर इनको कलेक्ट करें तो अपन क्या बनेगी डेफिनेशन, द डिफरेंट life forms found in a particular area. Found in a particular area is called its biodiversity. कई बुक्स में पर्टिकुलर एरिया की जगह अर्थ वर्ड काम में लिया हुआ है, तो अगर अपन ग्लोबल लेवल पे बात करें तब तो अर्थ यूज कर सकते हैं, और अगर अपन स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं तो फिर अपने को अर्थ की जगह क्या यूज करना है, पर्टिकुलर एरिया। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। डिफरेंट लिविंग फॉर्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है, दैट आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। उसे क्या बोला जाता है, उसकी बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। गॉट इट। या डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स का मीन्स है डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का मीन्स क्या है, प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो उसको अगर अपन कंसिडर करें तो वी कैन से दैट वन मोर डेफिनेशन, दैट वी कैन से दैट द डिफरेंट स्पीसीज, द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स,
animals and microorganisms found in a particular area. Found in a particular area is called its biodiversity. वो क्या कहलाएगी? उसकी बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. Got it? Understand? Clear? अगर अपन our environment में अपन देखें हमारे चारों तरफ, then we can say that diversity life forms are present. हमारे चारों तरफ diversity life forms present हैं, जिसमें अगर अपन कंसिडर करें तो स्मॉलेस्ट जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर अपन साइज वाइज भी चलें तो वी कैन से दैट डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द मैक्रो एनिमल्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रो में अपन बात करें तो जो बैक्टीरिया, उससे लेकर जो सबसे बिगेस्ट जो प्लांट और एनिमल्स में अपन बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो बिगेस्ट माना जाता है दैट इज रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के जो रेडवुड ट्रीज हैं जो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर की लेंथ के होते हैं, 100 मीटर टॉल, कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 320 approximately 325 feet long. That are biggest plants. Animals में अपन बात करें that is blue whale. Blue whale. Got it? तो blue whale की अगर अपन बात करें that is 30 meter long structure. तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि 100 मीटर 30 मीटर टू बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की अपन बात करें तो दैट इज मिली माइक्रॉन, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर की स्ट्रक्चर से लेकर इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स तक हमारी नेचर में प्रेजेंट है. गॉट इट? अगर अपन लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ फॉर्म्स की लाइफ की बात करें तो जो पाइन ट्रीज हैं जिनकी लाइफ मानी जाती है 100 ईयर्स, 100 ईयर्स, उनसे लेकर जो इंसेक्ट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स जिनकी लाइफ फ्यू डेज हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी लाइफ फ्यू सेकंड है, all of these consist or comes in our biodiversity. That means we can say that all of these included in our biodiversity. ये सभी हमारी biodiversity के अंदर included है. If we consider the approximately the estimation, then there are 10 million. 10 million means 1 crore organisms on our earth, out of which we know about only 1 to 2 million. जिसमें से हम केवल अभी तक 1 to 2 million यानी कि 10 to 20 लाख जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में अपन जानते हैं. तो दैट मीन्स वी आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी के केस में बहुत रिच हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन आवर बायोडाइवर्सिटी. ओके, दैट मीन्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ. नाउ such biodiversity, the study of such biodiversity has lots of complications. To solve them, that type of complications, we developed some systems. हमने कुछ systems को develop किया है, तो उनमें उसको डिवाइड करना, जिसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है क्लासिफिकेशन.
क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? क्लासिफिकेशन। सिंपल वर्ड अपन बोले कि व्हाट द मीन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मीन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन में अपन बोल सकते हैं दैट इज ग्रुपिंग, दैट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मीन्स क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मीन्स क्या हो गया? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, organizing of different organisms into different groups on the basis of their characters। उनकी characters की basis पर उनको different groups के अंदर जो उनमें certain features हैं या certain characters हैं या particular जो उनमें properties पाई जाती हैं, उनकी basis पर उनको different groups में divide करना या placing करना या grouping करना, that is called classification। जैसे simple से अपन बोलें, we use that birds, flying object that are birds। तो हमने किसको यूज किया? फ्लाइंग, दैट इज अ प्रॉपर्टी, जो क्या है एक तरीके से प्रॉपर्टी। तो उसका यूज करते ही अपन ने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया, या अपन बोले टेट्रापॉड जिनके 4 पैर हैं, तो अब टेट्रापॉड बोलते हैं ह्यूमंस, बर्ड्स या एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह, या रेप्टाइल जैसे कि लिजार्ड है, वो एक ग्रुप बन गया, बाकी अलग हो गए। या अपन ने बोला फोटोसिंथेसिस, तो ये बनते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 के अंदर डिवाइड हो गए, प्लांट और एनिमल्स। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। तो उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपों में डिवाइड करना, क्या करना? ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, दैट इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? क्लासिफिकेशन। ओके, सो वी कैन से दैट organizing the living organisms into different groups according to their certain features or characters is known as classification। Yeah, the methods of arrangement of organisms into different groups on the basis of the similarities and dissimilarities। अब properties में similarity dissimilariity दोनों अपन देख सकते हैं। On the basis of similarities and dissimilarities of properties is known as classification। क्या बोला जाता है उसको? classification। okay, more about the classification, that the need of classification and how can we classify the organism, we will discuss in next class। Thank you।